Morning, dear students. Last week we have completed our fourth chapter, that was the working with the MS Access. Now, this week we are going to start our new chapter, that is working with the queries. It is also related to our MS Access. But before starting this chapter, you should know what is a query. Query means the information that you are taking out from your table what you have inserted in MS Access. That means जो आपने टेबल MS Access में बनाए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप देते हो और उसका आंसर जो निकलता है कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रूप में, दैट इज़ नोन एज द क्वेरी. ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, बट what is the meaning of query in the book is given. A query is a database object that helps you to prevent and retrieve and view information from one or more database table that meet a specific condition or criteria. The information retrieved on the basis of a specified criteria in the query is stored in a separate table called query table. So जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो क्वेरी होती है वो एक डाटाबेस टेबल में से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो आप देते हो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड सॉर्ट आउट करके या फाइंड करके आपको डिस्प्ले करता है, और वो सारे रिकॉर्ड एक सेपरेट टेबल में जाके स्टोर होते हैं. दैट इज़ नोन एज द क्वेरी टेबल. सो देखो स्टूडेंट्स, ये जैसे एक टेबल है, ये क्वेरी टेबल है. दैट मीन्स यहाँ पे उनने एक ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढा है जो 8th और 9th में पढ़ते हैं. देखो ये जो क्लास है आप देख रहे हो, ये 3 स्टूडेंट की 8th और 2 की 9th है. मतलब यहाँ और भी स्टूडेंट थे जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 11th, 12th में भी पढ़ते थे, लेकिन आपने क्वेरी में जो क्राइटेरिया फिक्स किया है कि यू हैव टू डिस्प्ले ओनली द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 8th and 9th. So it is displaying only those students, those who are studying in 8th and 9th. So like this you will get your output with the query. So हमने देखा कि क्वेरी से आपको किस टाइप का आउटपुट मिलेगा. अब हम ये भी देखते हैं कि जनरल वे में व्हाट इज़ क्वेरी. क्वेरी किसे कहा जाता है. क्वेरी इज़ लाइक अ सिंपल क्वेश्चन दैट वन आस्क टू फाइंड ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस. यानी क्वेरी एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो हम डाटाबेस से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए करते हैं. Similarly, in Access, you can build a query, you can define a specific search condition, you can use queries to view, change or summarize and analyze specific data in different way. तो Access में आप की जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कंडीशंस डाल सकते हो. आप क्वेरी को किसी पर्टिकुलर आंसर्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए, उनकी समरी देखने के लिए, या पर्टिकुलर डाटा का एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो. हम यदि डेली लाइफ का एग्जांपल ले तो हम इस टाइप के क्वेश्चन क्वेरी में पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 85% इन अ क्लास. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स are living in LIG colony, or how many students are living, या which students are living in the sector 1 चंडीगढ़. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड ढूंढ के पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा, इन रिकॉर्ड्स को ही हम क्वेरी बोलते हैं. Now our next topic is setting the relationship between the tables.
So first of all, you should know how can you set the relation between the two tables. As I told you in the previous videos, that whenever you are making an MS Access table, you have to decide or select or give a primary key in each table. If you want to make a relationship between the two tables, there must be a common, at least one single field should be common in both the table, and you should define it as a primary key. Then only you can make or set a relationship between the two tables. So let us see what book is defining us. Relationship is a link that associates a field in a table with the same field in another table. In Access, you can store data in multiple tables. To bring the information together, you need to define a relation between the table. Once you have defined a relation between the tables, data from the both table can be used by query, forms or the reports. That means कि जब आप दो टेबल्स में रिलेशनशिप बना लेते हो, तब आप उन दोनों टेबल्स के फील्ड्स को क्वेरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो फर्स्ट टेबल है उसमें नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर है, और सीरियल नंबर जो आपका फर्स्ट कॉलम है, सीरियल नंबर और रोल नंबर, और एक सेकंड टेबल है जिसमें सीरियल नंबर और रोल नंबर फर्स्ट कॉलम है. देन marks of the subject English, Hindi, Science, Maths like this are given in the second table. When after defining the primary key in both the fields, when you set a relationship between these two tables, you can get the information or query or in the form the information related to the each student. For example, serial number or roll number, name, address, phone number, marks of English, marks of Hindi, marks of Sanskrit, marks of Maths, marks of Science, marks of Social Science, like this. That means in the third field, that is the query table, you will get the combination of both tables field in the third query table. Let us see how can we make a relationship between the two tables. A relationship works by matching field with the same name in both the table that I have explained you just now. In most cases, these matching fields are known as the primary key from one table that uniquely identifies each record in a table, and a foreign key in the other table. So you should know now what is the foreign key also. So the foreign key is a value in one table that must match the primary key of the other table. That means कि आपने जो फर्स्ट टेबल में जिस फील्ड को प्राइमरी की सेट किया है, सेकंड टेबल में उसी फील्ड को में वही जो टेबल के कंटेंट्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोल नंबर या सीरियल नंबर वाले कॉलम को आपने प्राइमरी की सेट किया है और उसमें 1 2 3 4 अप टू डैश डैश यानी अप टू 100 और वॉट एवर भी द नंबर्स जहाँ तक भी हो सकते हैं वो है. तो सेकंड टेबल में भी जो सीरियल नंबर और रोल नंबर नाम का फील्ड रहेगा उसमें वो ही सेम नंबर के रिकॉर्ड्स होना चाहिए. दैट मीन्स उनमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि जैसे फर्स्ट टेबल में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, तो सेकंड टेबल में भी सीरियल नंबर और रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देना है, ना कि चेंज करके 11 12 13 14 लाइक दिस. ऐसा कोई चेंज नहीं करना है. फर्स्ट टेबल में उस फील्ड में जो भी नंबरिंग होगी तो सेकंड फील्ड में
सेकंड टेबल में भी उस फील्ड में वही नंबरिंग होना चाहिए और सेकंड फील्ड का जो कॉलम रहता है उसको फॉरेन की कहा जाता है। सो नाउ अब हम सीखेंगे कि दो टेबल्स में रिलेशन कैसे सेट किया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक टेबल बना के रखना है जिसमें 10 to 15 रिकॉर्ड्स आपको एंटर करके रखना है। नाउ वी हैव टू यूज़ दैट टेबल। तो अब आप देख रहे हो जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, इसके फील्ड्स जो है रोल नंबर, फादर नेम, क्लास, एड्रेस और सिटी है और इसमें रिकॉर्ड्स भी एंटर किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। देन एक दूसरा टेबल भी आपको बनाना है, दैट इज़ मार्क टेबल। इसमें आपका रोल नंबर है, परसेंटेज है और ग्रेड है, 3 फील्ड है। ठीक है, तो जिन्होंने टेबल नहीं बनाया है वो सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे और इसमें एटलीस्ट 15 रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे तो ही अब आप इसको आगे रिलेट करके इसका आउटपुट क्वेरी या फॉर्म्स के रूप में देख सकोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस टेबल। देन टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन डाटाबेस टूल टैब, then select the relationship button from the relationship group। आपको database tool नाम के जो टैब है उसमें जाना है, रिलेशनशिप ग्रुप में से रिलेशनशिप नाम के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको शो टेबल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा और उसमें आपने जितने भी टेबल बनाए हैं ये देखिए उनके नाम दिखने लगेंगे। टेबल्स वाला जो टैब है वो एक्टिवेट है और उसमें मार्क्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 2 और टेबल 1 नाम के यानी जितने भी टेबल जो भी आप जिस नाम से भी सेव करोगे वो सारे टेबल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यू कैन एक्टिवेट द क्वेरी टैब इफ़ your relationship are based on the query or activate both tab if the relationship are based on the table and query। यदि आपको सिर्फ टेबल में रिलेशनशिप करना है तो आप टेबल पे क्लिक कीजिए, लेकिन आपको यदि क्वेरी भी चाहिए कि जैसे पर्टिकुलर किस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करना है तो आप क्वेरी वाले जो टैब है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्लोज बटन, ये नीचे क्लोज लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको प्राइमरी की जो है पेरेंट टेबल, मतलब जो फर्स्ट टेबल है उसको पेरेंट टेबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द पेरेंट की और द फर्स्ट टेबल दैट इज स्टूडेंट टेबल, यू हैव टू ड्रैग दैट की and you have to drag that key and you have to drop that key on the mark table that is child table। ये आप देख रहे हो जैसे स्टूडेंट टेबल था, यहाँ पर रोल नंबर, फादर नेम, क्लास और एड्रेस नाम के फील्ड्स थे और जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया था कि ये मार्क्स नाम का टेबल है जिसमें रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड नाम के फील्ड्स है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका पेरेंट टेबल है दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल है उसकी जो प्राइमरी की आपको दिख रही है रोल नंबर पे दिख रही है प्राइमरी की, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है ना ये। तो इस रोल नंबर पे क्लिक करना है और माउस के बटन को दबा के ही रखते हुए उस रोल नंबर वाले फील्ड को ड्रैग करके इस मार्क फील्ड वाले रोल नंबर पे लाके छोड़ देना है। तो आपको इस टाइप का डिस्प्ले होने लगेगा। दैट मीन्स अब आपके दोनों टेबल में देखिए एक रिलेशन सेट हो चुका है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों टेबल रिलेट हो चुके हैं। तो
आपने रोल नंबर वाले जो प्राइमरी की वाला फील्ड था उसको ड्रैग करके मार्क्स वाले फील्ड में ले आए हो। देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, आपको क्रिएट रिलेशनशिप वाले बटन पे क्लिक करना है। दिस हेल्प इन जॉइनिंग the two table and form a large table that reduce the data redundancy and inconsistency। यानी जब आप क्रिएट रिलेशनशिप बटन पे क्लिक करते हो तो ये दोनों टेबल को मिला के एक बड़ा टेबल बन जाता है, जिससे कि डाटा का रिपीटेशन नहीं होता है और उसमें कोई गलतियां होने के जो चांस रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और इनके बीच में जो ये लाइन जैसा कि आपको दिख रहा है, जेड टाइप की एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो है ये टू टेबल्स के बीच में बने हुए रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड। आफ्टर क्रिएटिंग ऑल दिस रिलेशनशिप यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार एंड ओपन द लिंक इन डाटा शीट व्यू। ये आपको सेव कर देना है, ये जो आपका टेबल्स में लिंकिंग हुई है इसको आपको सेव करना है और डाटा शीट व्यू में जाके इसको ओपन करके देखना है। तो आप देखोगे कि दोनों जो डाटाबेस थे वो एक कॉमन डाटाबेस फाइल बन गई है और उसमें आपका पूरा की पूरा डाटा एक ही फाइल में आ गया है। इस तरह से आप दो टेबल में रिलेशनशिप बना सकते हो। तो अब आपको ये सारी चीज़ें करके देखना है और आपके टेबल्स में 15 रिकॉर्ड्स एंटर करने के बाद उसको रिलेशनशिप और क्वेरी करके भी देखना है। आप अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्वेरी या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें करके देखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी कैसे करते हैं। आज हमने दो टेबल्स के बीच में रिलेशन कैसे सेट करना है ये सीखा है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, आपको इसको भूलना नहीं है और सब चीज़ें करके देखना है।